چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم کیس میں عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ عدالت کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتی، جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا عدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔ آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں۔ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی تھی۔ آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین قانون تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت 1993 میں قرار دیا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی، لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں۔ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا۔ مقامی عدالت نے مری پولیس کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مری پولیس نے شیخ رشید کو سول کورٹ میں پیش کیا اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ مری پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ شیخ رشید سے مقدمے سے متعلق تفتیش کرنی ہے اور کچھ ریکوریز کرنی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ شیخ رشید کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ عدالت نے مری پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے شیخ رشید کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گرفتار سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ یہ پیٹریاٹ کے نام سے نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں میں پیٹریاٹ پارٹی کی سربراہی کروں، ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں مگر بے وفائی نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کروانے جا رہے، یہ قومی اور صوبائی الیکشن اکٹھے کروائیں گے۔ میں ضمنی انتخاب میں قلم دوات پر N62 سے الیکشن لڑوں گا۔ کوئی کیس نہیں ہے، کیس کے پیچھے فیس ہے، کیس کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا ڈکیتی کی ہے میرے گھر میں، میرے گھر سے سامان لوٹا گیا ہے۔ یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں پیٹریاٹ، یہ چاہتے ہیں کہ پیٹریاٹ پارٹی کو میں ہیڈ کروں، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں، بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا۔ اور خان صاحب کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کر رہے، یہ صوبہ اور قومی کا اکٹھا الیکشن کریں گے۔ باقی الیکشن N62 سے میں قلم دوات کے نشان پہ لڑ رہا ہوں، جیل سے لڑوں گا، رمضان میں لڑوں گا انشاءاللہ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ مدعی مقدمہ کے وکیل نے عمران خان کو بھی شامل تفتیش کرنے کی استدعا کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ شیخ رشید کے وکلا سردار عبدالرزاق اور انتظار پنجوتھا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پروسیکیوٹر عدنان اور مدعی مقدمہ کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل عبدالرزاق نے ضمانت کی درخواست پر دلائل کا آغاز کیا اور FIR کا متن پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ FIR کے مطابق شیخ رشید نے تیار کردہ سازش کے تحت بیان دیا۔ شیخ رشید PTI اور پیپلز پارٹی کے درمیان تصادم کروانا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوٹر عدنان نے دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس معطل کیا۔
मुकदमा इंदराज से नहीं रोका। मुकदमे के दौरान तफ्तीश करना कानून के मुताबिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका भी नहीं। शेख रशीद के वकला ने केस से मुलजिम को खारिज करने के मुताबिक दलाइल दिए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि वकील मुलजिम की जानिब से केस से खारिज करने के मुताबिक दलाइल दिए ही जाते हैं। शेख रशीद के वकील ने कहा कि होना ये चाहिए था कि इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात होती। पुलिस फाइल के मुताबिक शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया। पहली दफा हो रहा है कि मुतासरा पार्टी को मुलजिम बनाकर पर्चे हो रहे हैं। रात को भी इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि 2 बंदों को आसिफ जरदारी ने पैसे दे रखे हैं। वकील अब्दुल रज़ाक ने दलाइल देते हुए कहा कि ये सिर्फ हतक इज्जत का केस बन सकता है। सबसे सीनियर वकील लतीफ खोसा ने हतक इज्जत का नोटिस भेजा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया? आपने इमरान खान से तफ्तीश नहीं की? क्या इमरान खान से पूछा कि उनके पास सबूत हैं या नहीं? तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेख रशीद ने कहा कि मैंने सिर्फ इमरान खान के बयान का हवाला दिया है, जिस पर जज ने दोबारा सवाल किया कि फिर आपने इमरान खान से तफ्तीश क्यों नहीं की? इस मौके पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना इल्जाम का केस बनेगा और इसमें इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के केस में इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरख्वास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। फैसल वाउजा केस में भी इस वक्त जवाब आया था जब वो रुकने असेंबली नहीं रहे। इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं इब्तदाई तौर पर सिर्फ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दूंगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मैं इस केस के मेरिट पर भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागजात नामजदगी के साथ बयान गल्फी में मालूमात छिपाने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दका नकूल जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब एक ही तारीख रखेंगे जिस पर दलाइल सुने जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान ने गलत बयान हलफी जमा करवाया। ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि इमरान खान तकनीकी बुनियादों पर राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। इमरान खान को पता है कि वो केस में कसूरवार हैं। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। किस्मती से इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख पे तारीख ली जा रही है और केस को मेरिट पर बहस करने से वो गुरेजा हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते। वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इनका वतीरा बन चुका है कि वो तोशाखाना की करप्शन हो तो ये तारीख पे नहीं आते। वो ये टिरियन जेड वाला केस हो, टिरियन वाइट वाला, उसमें ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनको आके मेरिट पर बहस करना होगी, क्योंकि अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था तो कोई और वजीर आजम हो, वो कोई असासा छुपाए, वो कोई जायदाद छुपाए, वो कोई औलाद छुपाए, उसका जवाबदेह होना होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF से कोई इख्तलाफात नहीं, मुज़ाकरात से मुतालिक आज अच्छी खबर देंगे। IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूँ और उनके साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। IMF के साथ आज फाइनल राउंड चल रहा है। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने के करीब है। IMF को बिजली गैस पर गरीब सार्फिन के लिए सब्सिडी पर राज़ी कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से बड़े बरामदी शोबों के लिए गैस सब्सिडी पर भी IMF को राजी कर लिया गया। वजारत खजाना अमीर तबके के लिए गैस और बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी दे देगी। वजारत खजाना मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी शेयर करेगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर होने पर वजारत खजाना और IMF मुआहदा होगा।
कौमी असम्बली का इजलास कुरम पूरा न होने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कुरम की निशानदेही की, कहा कि ये ऐवान खाली है, यहाँ कानून साजी नहीं हो सकती है। उनका कहना था कि लोग भूख से मर रहे हैं। काबीना में मजीद 7 अफराद शामिल कर लिए गए। कौमी असम्बली में काफ लीगी रुकन फराह खान की बहन के इंतकाल पर दुआए मगफरत कराई गई। दुआए मगफरत मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई इस्तीफों से मुतालिक कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अभी तक असम्बली को मौसूल नहीं हुआ। आइंदा का लाए अमल फैसला पढ़ने के बाद तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल भी हमें मिली है। तो लिहाजा जब तक कि फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने अपना फैसला तब्दील किया और अब अरकान असम्बली तहरीरी हुक्मनामे और मुकम्मल अदालती फैसले की रोशनी में ही कौमी असम्बली आएंगे। तकरीम करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है और हमारा तो पहले से ये मौक़िफ़ था कि ये जो मेंबर्स हैं ये जिस तरीके से इनके इस्तीफ़े कबूल किए गए वो गैर कानूनी है, वो गलत है और हाई कोर्ट ने इस फैसले की तस्दीक की है और हम समझते हैं कि आज हमारे मेंबर्स जाएंगे कौमी असम्बली में और इंशाअल्लाह हमारा अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। कोई टी पार्टी के लिए तो नहीं आ रहे ना, अपना अपोजिशन लीडर बनाने आएंगे इंशाल्लाह। जब तक सस्पेंडेड है तो वो आएंगे वापस ना, अगर उसको चैलेंज करेंगे किसी फोरम पे और इनको रिलीफ मिलता है उस पर तो फिर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा कि वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहरीर नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत हुई। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि जब गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख देना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब ने दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा करते हुए अपने जवाब में मजीद कहा है कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। गवर्नर आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा कि हमें मंतक से चलना होगा, पहले देखना होगा कि लार्जर बेंच की जरूरत है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। बताया कि मेरा बतौर वकील कल ही तकर्रुर हुआ है और मैंने अदालत के हुक्म भी नहीं देखे और जवाब भी तैयार नहीं किया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में कराने से मुताल्लिक अदालती नज़ायर भी हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन हमने करवाने हैं लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। ज़िमनी इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी होती है, लेकिन जनरल इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार में कानून मुख्तलिफ है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख ना दें तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इसमें अमल दरामद में रुकावटें हैं। जस्टिस जवाद हसन ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन बता दे, क्योंकि गवर्नर को मैं तो नहीं कहूँगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने सवाल किया कि अगर तारीख का ऐलान हो जाए और इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद ना कर सके तो क्या होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जमान पार्क पहुंच गए। सदर मुमलिकत की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के हवाले से नबील नकवी आगाह करेंगे। नबील बताएगा मुलाकात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त लाहौर के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर पहले जमान पार्क पहुंचे हैं, जहां पे वो साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। जबकि ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबैन इस वक्त मुल्की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। खास तौर पर जो मौजूद सियासी तौर पर जो इस मौजूदा सूरत हाल है और खास तौर पर इंतखाबात की तैयारी के हवाले से ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के माबैन जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के इंतखाबात, लोकल गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड की मुअत्तली के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। जनरल इलेक्शन की वजह से तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की नशिस्तों को मुअत्तल किया। अदालत का इस्तिफसार, क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं? अदालत ने इस्तिफसार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से वकला फजल कादिर और अकील मलिक अदालत में पेश हुए। वकला ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दोनों सूबों में लोकल गवर्नमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड्स को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 15 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वजारत दिफा ने आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात और सिक्योरिटी मामले पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत लिख दिया है। वजारत दिफा ने आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत करते हुए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं। सिर्फ राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए रेंजर्स मौजूद रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे और 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक डिजिटल मरदुमशुबानी में भी मसरूफ होंगे। वजारत दाखिला ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि मुल्क दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बायस सख्त सिक्योरिटी हाल से गुजर रहा है। मुल्क को कसीरुल जहती सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। अहम मुल्की तंसीबात और गैर मुल्की बाशिंदों को सिक्योरिटी फराहम करनी है। शरपसंदों, गैर रियासती अनासर की जानिब से सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। नेक्टा और खुफिया एजेंसियों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दीगर सरगर्मियों के लिए वक्त निकालना मुश्किल है। वफाकी वजारत खजाना का इलेक्शन कमीशन के खत के जवाब में कहना था कि मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मौखिर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि आम इंतखाबात के अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। क़ब्ल लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के आम इंतखाबात में अदालती अफसरान देने की माजरत कर ली थी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालती अमले की इलेक्शन में तैनाती से माजरत कर ली। जवाबी खत में कहा कि पंजाब में अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ साथ इंतखाबी अमल में शिरकत बहुत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए वजारत दिफा से पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि 3 दिन गुजर गए तो आईनी मसाइल पैदा होंगे। इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो हमें आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशत गर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं, जिसका जवाब जो असद उमर साहब ने अभी आपके सामने रखे हैं, बड़ा वाज़ेह है। असम्बली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, इजलास जारी है? बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात को लेकर के एक ज़ाब्ता अखलाक जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था और ये 21 सियासी जमातों को दिया गया था और उसके बाद इनसे तजावीज़ मांगी गई थी और उसके बाद उनको इजलास के लिए तलब किया गया था उन तजावीज़ के साथ। और 21 सियासी जमातें जिनको ये बुलाया गया था आज इजलास के लिए, और अब इजलास जो है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं इस इजलास को जारी हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ये इजलास जारी है, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी शरीक हैं, सेक्रेटरी शरीक हैं और दीगर जो कमीशन के अफसरान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब तक के ज़राए के मुताबिक ज़राए बता रहे हैं कि 6 सियासी जमातें जो हैं उनके नुमाइंदे इसमें शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ साथ
और जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इसमें इजलास में शरीक हैं। साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जैद खान जो हैं वो भी इसमें शरीक हैं। और इस तरह बताया जा रहा है कि दीगर जो सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, फंक्शनल लीग है, नेशनल पार्टी है, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। 6 सियासी जमातों के नुमाइंदगान जो है अपनी अपनी तजावीज़ लेकर पहुँचे हैं और ज़ाब्ता अखलाक की बनाने में जो है मावनत की जा रही है। इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ड्राफ्ट को जो है हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा। अब ये जो इजलास है इसको 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद कितनी देर लगता है और क्या ज़ाब्ता अखलाक सामने आता है ये वक्त ही बताएगा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद। तुर्किया शाम ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। एहसन इकबाल की सरबराही में साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब कमेटी के रुकन होंगे। राना तनवीर, अब्दुल शकूर चेयरमैन NTMA और तारिक फातमी भी कमेटी के मेंबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया शाम ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए तालीमी इदारों में फ़ंड रेजिंग की जाए। मुक़य्यर हज़रात, सनतकार और कारोबारी अफराद तुर्किया और शाम ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ। आवाम ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी अशिया NTMA के कलेक्शन सेंटर्स पर जमा करवा सकते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्किया के साथ शाना बशाना खड़ा है। तुर्किया ने 2010 और 2022 के सैलाब में पाकिस्तानियों की हर तरह से मदद की है। सच न्यूज़ से फिलवक्त इतना है। हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।